Hello friends, welcome back to this channel for the preparation of principal and vice principal. Today I'm going to begin directly with the syllabus. I have something to say you. Let us begin. Administration and finance, that will be covered for 70 marks, as you know it very well. And there are 9 topics, so we can assume 8 questions from each topics. 8 questions from each topic, and mostly there are some, it's not necessary that from each topic 8 questions will be given. There are some topic that is more important, and from there many questions are given, more than 8 questions are given, but minimum 8 questions will be there. Only then they will be able to cover 70 marks. Only 9 topics, my dear friends. And if you have seen my previous video, I have covered completely the very first topic, that is CCS CCA rules. I have given 4 videos in different part 1, part 2, part 3 and part 4, and I have discussed 104 questions related to CCS rules. You must watch them if you want to complete the syllabus. And today, what I am here for, you can see the new task I have taken is conduct rule, CCS conduct rule 1964, and today I am with part 1. My dear friends, again I promise you, in 4 parts I'll be discussing 150 questions, and that will cover the entire syllabus of CCS conduct rule. 150 question I am going to discuss in 4 parts, and after completing all these 4 parts, again a marathon video will be released where you will be getting 150 questions altogether. So let us begin without wasting time. We will come to the question that we are here for. We will be discussing the questions in detail. And here we go. If you remember, we have done up to question number 104. This is a revision from Swami's handbook. Swami's book, you can say, that is available in the market. You must purchase it in original so that you can study. Up to 104 we have done in CCS, CCA rules, and today we will go ahead with question number 105. State the year in which CCS conduct rule came into force. My dear friends, you must remember that first CCS conduct rule came, then came CCS CCA rule. So here it is 1964. The answer is known to everybody, and if we talk about date, it is 30th of November. You must remember 30th of November to 1964. Now, to whom is CCS conduct rule not applicable? ये प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा. 2-3 तरीके से घुमा फिरा के इस प्रश्न को पूछा जाता है, तो आप स्ट्रेट अवे याद रखिए कौन कौन इस रूल में कवर होते हैं, कौन कौन इस रूल में कवर नहीं होते हैं. इसीलिए हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो. Employees of non-statutory डिपार्टमेंट कैंटीन, यस, ये शामिल होंगे. इन पर सीसीएस कंडक्ट रूल लागू होता है. पर्सन अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस आर पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन, जहां यूनियन वर्ड आ गया, डेफिनेटली दीज पीपल आर आल्सो एसोसिएटेड, आर द कंडक्ट रूल इज एप्लीकेबल टू देम. मेंबर ऑफ कमिटीज कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट है, मतलब डेफिनेटली उन पर लागू होगा. तो कौन सा आंसर हमारा राइट आंसर है इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट इन द पोस्टल डिपार्टमेंट. पोस्टल डिपार्टमेंट में भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट, इस वर्ड के कारण हम कह सकते हैं कि इन पर सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है. नाउ, व्हाट बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट ऑल टाइम्स? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप अपने विवेक के आधार पर भी उत्तर दे सकते हैं. हालांकि जब हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें हमको मालूम होंगी. व्हाट बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट ऑल टाइम्स? पूरे टाइम आपको कौन सी बिहेवियर? मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, डेफिनेटली यू शुड डू इट. मेंटेन एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी, यस, वी आर ऑल फॉर 24/7. यू कैन नॉट से कि अब स्कूल का टाइम खत्म हो गया है. नो, वी आर 24/7. डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यस, ये हमें होना चाहिए. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव. फ्रेंड्स, मैं आपको कंडक्ट रूल यहाँ पे दिखाना चाहूंगा इन ब्रीफ, एंड दिस रूल हैज बीन अपडेटेड on or amended, you can say it is latest one, 31st of December 2014.
14। तो एक बार सरफेस लेवल पे आप देख लीजिए. दिस आई विल प्रोवाइड यू इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देयर विल बी अ लिंक वेयर यू कैन डाउनलोड इट. आप देखिए रूल 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. रूल 2 डेफिनेशन देता है. रूल 3 इज जनरल थिंग, और इसी जनरल थिंग के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है जो अभी मैं बातें कर रहा था. आई विल शो इट टू यू. यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि कौन कौन व्यक्ति कवर होते हैं, कौन कौन व्यक्ति कवर नहीं होते हैं. सो यू कैन रीड इट ऑल इन डिटेल योर सेल्फ. आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट फॉर यू. देखिए इधर, these rules may be called the Central Civil Service Conduct Rule 1964. They shall come into force at once, save as otherwise provided in these rules and subject to the provision of the Indian Foreign Service Conduct and Discipline Rule 1961. These rules shall apply to every person appointed to a civil service or post, including a civilian in defense service in connection with the affairs of the union. हर वो व्यक्ति जो यूनियन के अफेयर से कनेक्टेड है will be covered under this conduct rule, provided that nothing is this rule shall apply to any government servant who is. अब ये सारे लोग हैं जिन पर ये लागू नहीं होता है. ये हमें पढ़ने की जरूरत है. ये सारी चीजें हैं, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं. मैं रूल नंबर 3 की बात कर रहा था. आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल रूल. रूल नंबर 3 जनरल रूल, इसे याद रखेंगे. एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एट ऑल टाइम. ये 22 रूल्स हैं. देखिए इधर, इन 22 रूल्स को आप एक बार 21 रूल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लें. सिंपल है. मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, हमें हमेशा मेंटेन करना है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी. मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी. डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट. एंड द लिस्ट इज लॉन्ग, दिस यू कैन गो थ्रू. तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको 107. प्रश्न क्रमांक 108 की ओर आगे बढ़ते हैं. स्टेट what a government servant should do if he had received oral instructions direction from his superior. यदि उसे अपने सुपीरियर से oral instructions मिले हैं, what should he do? The very first thing I will tell you, my friends, you know it also, there is nothing like oral in central government offices and schools. Everything should be in written. And even if your superior gives you oral instructions, for time being it is to be followed, but immediately you should seek that you get the order in writing immediately, rather before the execution, and if not possible after the execution you must get it in writing. इसके 4 ऑप्शन दिए. मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा ताकि जो गलत ऑप्शन है वो मैं बता सकूं आपको. State what a government servant should do if he had received oral instruction direction from his official superior. He would obtain the written confirmation of the same. Yes. He would go to and discuss about this with other employees. ये गलत बात है. He would not ask for any official confirmation from his official superior in writing. बिल्कुल गलत है. He would try to get the written confirmation from the supervisor of the other department. Other department में जाने की कोई जरूरत नहीं है. So the right answer is answer number A. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर आगे बढ़ते हैं. Quote the rule under which the provision of prohibition of sexual harassment of women is covered. My dear friends, इस रूल को बहुत ध्यान से पढ़ना है. यहाँ पे मैं बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिए. पहले तो मैं सीधा सीधा इसका उत्तर बता दूं. उस रूल को कहते हैं 3C. सी से याद रखेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट. सी से, हालांकि सी इज नॉट द सिंबल आर अल्फाबेट, सी फॉर सेक्स, ये याद रखिए आप. सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस बनता है वो 3C का बनता है. और ये जो 3C का केस होता है वो क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, जरा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे आप समझने की कोशिश करेंगे. हम बात कर रहे हैं 3C की. रूल नंबर 3C की हम बात कर रहे हैं. तो 3C जो होता है इज सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जो होता है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इज कवर्ड अंडर सेक्शन रूल 3C. इसके अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड अस दैट एवरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट विल हैव अ कमिटी that will take care of that will do all the inquiries of the working women. तो इसके अंतर्गत एक बात और ध्यान रखेंगे, इसकी जो हेड होंगी वो वुमेन एम्प्लॉय होंगी. इस बात को आप ध्यान रखेंगे. इनकी जो हेड होंगी इस कमेटी की वो क्या कहलाएंगी, वो हेड होंगी वुमेन. इसके हाफ ऑफ द जो मेंबर होंगे शुड बी वुमेन.
आधे से ज्यादा मेंबर क्या होने चाहिए इनके, वुमेन होने चाहिए, एंड शुड बी सुपीरियर. The woman who is going to preside over the chair, who is going to be the chairman, should be the superior in rank and post. Should be superior in the rank and post. इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है. उसके अलावा इनकी जो पीरियोडिसिटी होगी, इनकी जो बैठक होती है वो हमेशा क्वार्टरली होती है. इस बात को भी ध्यान रखेंगे. ये सारे आपको प्रश्न के रूप में आएंगे, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं यू मस्ट टेक केयर of these things very well. First of all, again I will repeat the thing that CCS Conduct Rule 1964 Rule 3C says that it is about prohibition of sexual harassment of working women. Supreme Court has given clear-cut, Honorable Supreme Court has given clear-cut instruction that every ministry, department and offices must have a committee that will deal with the prohibition of the cases of sexual harassment in every department, and the chairperson of this committee would be a woman, and half of the member, more than half of the members should be the woman candidate, and the superior and in rank or post should be the chairman of the committee, and they should have the periodicity of their meeting should be quarterly. एक बात और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा आपको इसी के संबंध में कि ये जो होंगे उनको जो इनको जो वो दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, दैट इज गिवन ऑफ इंक्वायरी. दे विल बी नोन एज इंक्वायरी ऑफिसर अंडर CCS conduct rule. The chairperson, the woman who is the chairperson, will be known as the inquiry officer under CCS conduct rule. तो my dear friends, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है. I hope it is clear to you. चलिए आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं. इस प्रश्न को मैंने इतना डिटेल से इसलिए लिया क्योंकि आगे जाके बहुत सारे प्रश्न इन पे बनेंगे. फिर से प्रश्न क्रमांक 109 को रिपीट करता हूं. Quote the rule under which the prohibition of sexual harassment of working women is covered. It is rule 3C. आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. A government servant who was convicted by a court of law had suppressed the fact and requested for grant of rule. ये तो बिल्कुल गलत बात है. आप प्रश्न को पढ़ते से ही समझ सकते हैं कि किसी को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है और उसने उस फैक्ट को छिपाने की कोशिश की और अपने अथॉरिटी से छुट्टी की मांग कर रहा है. ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव फॉर द एब्सेंस. व्हाट एक्शन शुड बी प्रपोज्ड इफ लीव ऑलरेडी सैंक्शन. यदि ऑलरेडी लीव सैंक्शन हो चुका है तो उन अधिकारी पर क्या एक्शन किया जाना चाहिए. भाई सिंपल सी बात है. द गवर्नमेंट सर्वेंट इज लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन. आगे बढ़ते हैं. अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज डिटेन्ड इन अ पुलिस कस्टडी. लगभग वैसा ही प्रश्न है. एक अधिकारी जिसे पुलिस कस्टडी में डिटेन किया गया फॉर मोर देन 48 आवर्स. जैसे मोर देन 48 आवर्स हो गया, आपने CCS रूल में पढ़ा है, ही विल बी डीम्ड एज सस्पेंडेड. He will be deemed as suspended. This you must have understood. And he failed to intimate the same to the superior. ठीक है, वो अपने सुपीरियर को ये बात नहीं बता पाया, इंटीमेट नहीं कर पाया. अब उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? And requested for sanction of leave for the absence. अब यहाँ पे वो गलत कर रहा है. तो ऐसे में क्या होना चाहिए उसके साथ में? Definitely he is liable for disciplinary action. He is liable for disciplinary action. So your answer is going to be answer A. Very clear, I suppose. Now, name the activity which requires prior permission, sanction of the prescribed authority. ये 4 एक्टिविटी दी गई है. इन 4 एक्टिविटी में 3 एक्टिविटी आप कर सकते हैं, उसमें प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपको प्रायर सैंक्शन लेना ही पड़ता है अपने अथॉरिटी से. तो वो कौन सा है? सीकिंग रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ सर्विस मैटर इन कोर्ट लॉ. भाई आप किसी भी कोर्ट में जाके कोई भी रिड्रेसल कर सकते हैं, अपने ग्रीवांस दे सकते हैं, इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है. गिविंग एविडेंस इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी. आप गवाही दे सकते हैं, फैमिली मैटर हो या ऑफिशियल मैटर हो. टू टेक पार्ट इन इनफॉर्मल फेयरवेल इंटरटेनमेंट. हम नॉर्मली लेते ही है, हमारे कोई साथी रिटायर होते हैं तो हम उनके फेयरवेल में भाग लेते हैं. फिर टू ज्वाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्स ऑफ स्टडीज फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री नीड्स प्रायर परमिशन.
जो मेरे मित्र साथी हैं, आप जानते ही हैं, यदि ऐसा है कि आप कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो अवश्य लीजिए इसकी परमिशन, क्योंकि जब आप परमिशन लेंगे, बिकॉज यू आर डूइंग इट इन सर्विस, only then it will be added in your service book and you would be in a position to take advantage of the degree that you are pursuing. आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 113 की ओर। नेम द एक्ट, कंडक्ट एंड कमीशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट विच अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप मिसकंडक्ट कहेंगे? सिंपल सा दिख रहा है आपको, स्ट्राइकिंग वर्क और इंसाइटिंग अदर्स टू स्ट्राइक, किसी को स्ट्राइक के लिए भड़काना, इंसाइट करना, उकसाना, भड़काना, ये जो होगा क्या कहलाएगा? मिसकंडक्ट कहलाएगा। रेंडरिंग प्रॉम्प्ट एंड कर्सियस सर्विस टू पब्लिक, ये तो आपको करना ही है। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी करना है और आप करते ही है। मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकली आपको न्यूट्रल होना ही है। नेम द एक्टिविटी विच डज नॉट रिक्वायर सैंक्शन परमिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। फिर से ऐसी 4 एक्टिविटी दी गई है, उसमें से एक एक्टिविटी ऐसी है जिसे प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको मालूम है, आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। मैं 4 से 5 सेकंड का गैप इसलिए देता हूं कि उस बीच आप क्वेश्चन को पढ़े, उनके ऑप्शंस को पढ़ ले और अपना आंसर डिटरमाइन करके रखिए, और मैं जब राइट आंसर बता रहा हूं उससे आप मैच कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, इसे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू ज्वाइन एज वॉलंटियर इन सिविल डिफेंस। दूसरा, टू एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम नियर रिलेटिव्स एंड पर्सनल फ्रेंड्स व्हेन द वैल्यू एक्सीड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। टू एक्सेप्ट फी फॉर डन एनी वर्क प्राइवेट और पब्लिक बॉडी और पर्सन। टू पार्टिसिपेट इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और द भारत सेवक समाज ड्यूरिंग द स्पेयर टाइम। आपको पता है, इसे सैंक्शन चाहिए, इसे सैंक्शन चाहिए, इसे सैंक्शन चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा है जिसे सैंक्शन की आवश्यकता नहीं। आप इसे याद रख लीजिए, भारत सेवक समाज ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक यूनिट है, और इस पे यदि हम श्रमदान करते हैं तो हमें प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज द यूनिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों के लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है, और यदि नहीं लेते हैं यू आर लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। नंबर 115, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द एरिया, MP or MLA are to be invited to public function organized by government offices. In such situation, what is the status of MP? तो ऐसी स्थिति में MP की क्या स्टेटस होती है? As per the warrant of precedence. Precedence क्या होता है? हायरार्की आप इसे कह सकते हैं। उच्च पद से निम्न पद की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उनकी हायरार्की, उनकी रैंक क्या होगी? सिंपल सा उदाहरण समझाता हूं। आपके स्कूल में इंस्पेक्शन होता है, उसमें 4 वरिष्ठ अधिकारी आते हैं या 3 प्रिंसिपल होते हैं, एक एसी होते हैं। अब आप उनको पूरे इंस्पेक्शन के दौरान फीडबैक के लिए बुलाते हैं, तो सबसे पहले जूनियर मोस्ट को, फिर उनसे सीनियर को, फिर उससे सीनियर को, फिर सबसे सीनियर को, ये सबसे ज्यादा रैंक में। उसी तरीके से यहाँ पे MP की रैंक क्या होगी? अब आप चारों जब आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको आंसर क्लियर होगा। देखिए, ही इज अबव द रैंक ऑफ मिनिस्टर। नहीं, MP जो है वो मिनिस्टर के रैंक से ज्यादा का रैंक आदमी तो हो नहीं सकता भाई, तो ये आंसर गलत है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन सुना है तो इसका उत्तर आप दे सकते। ही इज अबव द रैंक ऑफ द स्टेट गवर्नर। नहीं, स्टेट गवर्नर इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट, वो उनसे बढ़ के तो हो नहीं सकते। ही इज इक्वलेंट टू द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नहीं, पूरे इंडिया के डेप्यूटी सेक्रेटरी के इक्वलेंट तो नहीं हो सकते। देन व्हाट इज द राइट आंसर? ही इज अबव द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Secretary of the Government of India. That is going to be the answer. आगे बढ़ते हैं। What is the time limit prescribed for sending an acknowledgement to a communication letter received from the member of parliament as per the provision of manual of office procedure? एक MOP कहलाता है, MOP इसे एब्रीविएट किया गया है, इसका फुल फॉर्म है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। MP और MLAs आपको जब कोई लेटर लिखते हैं किसी विद्यालय को, किसी स्कूल को, किसी ऑफिस को, तो उसे 15 दिन में एक्नॉलेज देना और 30 दिन में उसका रिप्लाई देना। ये दोनों प्रश्न साइमल्टेनियसली हैं, 116 नंबर और 117 नंबर के प्रश्न। तो आप ध्यान रखेंगे, विद इन 15 डेज आपको उसका रिसिप्ट देना है। और क्वेश्चन नंबर 117 पढ़ता हूं आपके लिए। व्हाट इज द टाइम लिमिट stipulated for sending a final reply to a communication letter received from the member of
Parliament. If the information has to be obtained from the another office, ministry, as per the provision of Manual of Office Procedure. The right answer for this is within 30 days. आगे बढ़ते हैं. A complaint committee, हाँ आप ध्यान रखेंगे. A complaint committee has been constituted in each ministry, department, office as per norms, guidelines issued by the Honorable Supreme Court. State the purpose of which it is constituted. आपको याद आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 3C of CCS conduct rule. It is exploitation of prohibition of exploitation of women employee. So the answer is to inquire into the complaints of sexual harassment of working women in the workplace. That is the correct answer. The report of complaint committee established in each ministry. इसी complaint committee की बात करें जिसका अभी हमने जिक्र किया था. The report of complaint committee established in each ministry or department or office for inquiring into complaint of sexual harassment is considered to be, वो जो committee होगी वो committee क्या कहलाएगी? It will be considered as inquiry of authority report under CCA rule 1965. अगर आपको जरा सा भी याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, उन्हें हम कौन सा रैंक देंगे? इंक्वायरी ऑफिसर का रैंक देंगे. 3C के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है. मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए. आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 120 की ओर. द कंप्लेंट्स कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट बाय द वुमेन एम्प्लॉयज शुड बी हेडेड बाय. अभी मैंने बताया था इसका चेयरपर्सन कौन होगा. Who will be the chairperson of such a committee that is made for the prohibition of sexual harassment? An officer sufficiently higher in rank. यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आती है कि चेयरपर्सन जो होगा मेल होगा कि फीमेल होगा. हालांकि क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है. इट कैन बी, इट्स बेटर इफ इट इज फीमेल बट इट कैन बी मेल एज वेल. इस बात को ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया एन ऑफिसर सफिशियंटली हायर इन रैंक. लेकिन आधे से ज्यादा मेंबर वुमेन होंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे. फिर से वही प्रश्न है. द पीरियोडिसिटी ऑफ द कन्वेनिंग अ कंप्लेंट कमिटी इज, अभी अभी मैंने बताया था आपको, क्वार्टरली इनकी बैठक होती है और रिपोर्ट सबमिट की जाती है. प्रश्न क्रमांक 122 की ओर बढ़ते हैं. विच इज द नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू सर्विस कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट. सर्विस कंडीशन की बात आती है, आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. नाउ CCS conduct rules stipulates prior permission information for accepting employees in foreign organization by a close relative. Foreign organization में आपके close relative जॉब ले सकते हैं. Name the foreign organization from the following category. तो इनमें से आप फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन आप किसे कहेंगे? तो ध्यान रखेंगे हम उस कॉर्पोरेशन, अ कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी, जो कंप्लीटली फॉरेन कंपनी तो नहीं है बट इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन टेरिटरी. बट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन टेरिटरी, दैट विल बी नोन एज फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन. इस बात का ध्यान रखेंगे. प्रश्न क्रमांक 124 की ओर आगे बढ़ते हैं. विल गो अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 124. Name the act from the following which does not amount to taking part in politics and election by a government servant. आप चारों ऑप्शन पढ़ते रहिए. इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप कहेंगे कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले रहा है, या डज नॉट अमाउंट टू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट. गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे कई काम करते हैं, तो आप कौन से काम को इसकी कैटेगरी में नहीं लाएंगे? असिस्टिंग द कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन इन ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन हिम. आपको P1, P2, P3, पीठासीन अधिकारी, ऑब्जर्वर, इन सब की ड्यूटीज दी जाती है इलेक्शन में, और यदि हम ये कर रहे हैं तो इट डज नॉट अमाउंट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन. सिंपल सा प्रश्न था. प्रश्न क्रमांक 125. नेम द एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल अमाउंट टू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन बाय गवर्नमेंट. हाँ, अभी फिर से 4 एक्टिविटी दी गई है, उनमें से कौन सा ऐसा है जिससे ये पता चलता है कि आप सीधे तरीके से
डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप कहेंगे, यदि पहला ही ऑप्शन सही है, ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग फॉर मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर के लिए भैया आप कोई इलेक्शन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, इसका मतलब तो सीधा सीधा यू आर प्रमोटिंग वन पर्टिकुलर पार्टी एंड वन पर्सन। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। प्रश्न क्रमांक 126 की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका इंटरेस्ट बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये ऐसे टॉपिक हैं पढ़ के समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मैं जिन उदाहरणों से समझा रहा हूं, यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आई एम प्रेटी श्योर यू मस्ट बी गेटिंग इट कंप्लीटली। और आपके सजेशंस, एडवाइजेस आर ऑलवेज वेलकम। You can be in this channel, you can subscribe it so that you may get the notification regularly whenever a video is updated. Friends, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, बट ये बात मैं जरूर कहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक लिखे। That will encourage me to go ahead, that will encourage me, that will tell me that whether I should change my method, what should I include, what I should leave, everything you can convey me through your comments, and undoubtedly it encourages somebody who is working or who is putting forward his efforts to bring the things live to you. Let us move to question number 126. Which are the matters that cannot be displayed by a recognized association, trade union on a notice board in the ऑफिस प्रीमाइसेस? ऑफिस प्रीमाइसेस में कौन सी ऐसी सूचना है जिसे आप नहीं हैंग कर सकते? जल्दी जल्दी पढ़ लिया कीजिए फ्रेंड्स। आप डायरेक्टली आंसर करें ये भी ठीक नहीं है, यू मस्ट गो थ्रू द ऑप्शन। ये जो मैं पॉज देता हूं, दैट पॉज इज फॉर दैट पर्पज। सो सिंपल सी बात है, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑफिस ऑफिसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुड नॉट बी पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड। ऐसा थोड़ी ना कि हम उसको नोटिस बोर्ड में लगा देंगे। दैट इज अ पर्सनल अफेयर दैट should be dealt personally. Question number 127. Who is competent authority to decide whether the activities of an association attract the provision of Rule 6 of CCS Conduct Rule? Who is competent authority to decide whether the activities of an association, किसी एसोसिएशन का कोई एक्टिविटी अट्रैक्ट कर रहा है प्रोविजन ऑफ रूल 6 ऑफ कंडक्ट रूल? तो आपका सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि भाई ये कंडक्ट रूल 6 है क्या? तो चलिए वो देख लेते हैं। कंडक्ट रूल 6 क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट यदि किसी ऐसे एसोसिएशन को ज्वाइन करता है, देखिए, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, no government servant shall join or continue to be a member of an association the object or activities of which are prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality. गवर्नमेंट ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एसोसिएशन को अगर मान्यता दी है और आप यदि उसके मेंबर है, तो देन इट इज गुड। And if you join any association that may endanger the interest and sovereignty and integrity of India, then definitely it is the violation of conduct rule. तो इन सब का डिटर्मिनेशन कौन करेगा? फ्रेंड्स, आई होप रूल 6 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल इज वेरी क्लियर टू यू। अब इसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा कि आप इसको वायलेट कर रहे हैं? तो इट विल बी डन बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ स्ट्राइक? भाई, इनमें से स्ट्राइक की परिभाषा में आप किसे लेंगे, किसे आप स्ट्राइक कहेंगे? सबमिशन ऑफ ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन बाय एम्प्लॉय, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में हम ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो ये स्ट्राइक नहीं है। पार्टिसिपेशन इन जनरल बॉडी मीटिंग, ये स्ट्राइक नहीं है। लॉफुल गैदरिंग, भाई जहां पे नाम ही लॉफुल लिखा है वो कैसे स्ट्राइक हो सकता है? फिर क्या स्ट्राइक है? रिफ्यूजल टू वर्क और स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन वर्क बाय ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, दिस इज स्ट्राइक which we should always avoid. Number 129. What action can be taken against employee who participate in a strike? सिंपल सी बात है भाई, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ इनिशिएट कर दिया जाएगा। इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर unauthorized absence. His absence is even present will be marked as unauthorized absence because he is on strike. Which conduct rule प्रिवेंट्स द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट? ये जहां क्रिटिसिज्म फ्रेंड्स, एक मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। क्रिटिसिज्म में देखिए कितने 9 लेटर्स हैं, आप इसको काउंट कीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसे याद रखिए कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज मेंशन्ड इन रूल नंबर 9। तो ये रूल नंबर 9 क्या है, ये जरा मैं पढ़ दूं आपको। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट: no government servant shall in any radio broadcast टेलीकास्ट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ पढ़ते होंगे, अगर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर हैंडल पे यदि आपने गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज के खिलाफ कुछ बोला है, इट इज एन ऑफेंस, इट इज वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। आप उसे इस प्रकार के किसी डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड इन हिज नेम और एनोनिमसली और सिडोनिमसली, मतलब किसी और दूसरे नाम से, जैसे कोई अयोध्या सिंह उपाध्याय वो हरिऔध के नाम से लिखते थे, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये निराला क्या है, सिडोनिम कहलाता है, उपनाम कह लीजिए या कुछ भी आप कह लीजिए, जिस नाम से वो कविता लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला क्या है, ये उनका सिडोनिम है। तो ये सिडोनिम शुड नॉट बी देयर on your name or on pseudonym or anonymously. You should not publish in social media or in any electronic media, print media or press. इस बात को ध्यान रखेंगे। Now, what action is to be taken against the service association passing resolution on issue which involve violation of rule by the individual employee? फिर से, what action is to be taken against the service association, उस सर्विस एसोसिएशन पासिंग रिजोल्यूशन ऑन इशू विच इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ द रूल बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय अगर वायलेशन ऑफ द रूल कर रहा है तो कौन सा उस पर किया जाएगा, क्या एक्शन उस पर लिया जाएगा। नो एक्शन टेकन, ये तो गलत हो जाएगा। रिटर्न वार्निंग टू बी इशूड, नहीं। डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी इनिशिएटेड, इट इज वायलेशन ऑफ रूल, सो डिसिप्लिनरी एक्शन में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द फेलो। So friends, I suppose it is a longer video, and since it was the first video of CCS conduct rule, again I'll tell you, this is the first video, part 1 video of this conduct rule, CCS conduct rule 1964। फ्रेंड्स आप वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए। अगले 3 और वीडियोस में आई एम गोइंग टू डिस्कस 100 क्वेश्चंस एंड इट विल अमाउंट टू कंप्लीट सिलेबस कवरेज of the examination that you are going to be asked, that you are going to appear in the examination। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आखिरी में आपको बता दूं, ये 9 टॉपिक है जो आपको कवर करना है। एक टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द कंडक्ट रूल 1964। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई एक्सपेक्ट, आई होप you must be getting something, you must be learning, and it is going to be a joyful moment for you with me here in this channel. Thank you for watching it. Thank you. Have a nice day. See you in the next video.